हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सो इन द लाइक लास्ट सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू सेंड लाइक द यूजर registration details basically on their email ID, and also like we had check what like how we can find out like the existing users before the registering like the new users. Okay, so like this condition was very important basically there, because अगर कोई existing user अगर हम लोग test नहीं करेंगे, so at the same time the same user they can enter into like the systems further. ठीक है, तो लाइक हमें उसे लाइक रेस्ट्रिक्ट करना है, उसे अवॉइड करने के लिए लाइक हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर का एक कंडीशन सेट किया. सो दैट कंडीशन इज लाइक नाउ चेकिंग फॉर लाइक व्हाट वेदर द ईमेल इज एग्जिस्ट और नॉट. if it is email is exist, then like it's not giving the permissions to again like the register it like the same email id. ठीक है, तो लाइक वो हम लोगों ने सेटअप किया ईमेल आईडी वाला, और उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी हम लोगों ने ईमेल पे सेंड किया. Okay, so that was our like the last sessions wala part, and now like we'll see basically our everything part is working now. Like we have set up like some authorizations roles basically. The different roles wise हम लोगों ने कुछ parts of section जो था like उसको मैंने access करके हम लोगों ने access करके दे दिया. And now like we'll set up for like what for like the forgot passwords वाला query. ठीक है, सो लाइक फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी लाइक हम लोग विल ट्राई टू लाइक सेटअप दिस फॉरगेट पासवर्ड थ्रू आउट द ईमेल आईडी. ठीक है, तो जैसे फॉरगेट पासवर्ड्स करना है, बिकॉज देखिए लाइक यूजर्स के लिए लाइक देयर आर नो ऑप्शंस टू लाइक डू एनीथिंग अदर. सो व्हाट दे कैन डू बेसिकली, whatever they want to do like they can do only the sign in process only. The nothing like nothing of the things is there like in their hands to like do some changes into this. ठीक है, सो लाइक उनको कुछ भी चेंजेस करने के लिए हम लोगों ने कुछ भी राइट्स नहीं दी है. तो अगर कोई भी चीज़ें चेंजेस करने फ्रॉम एडमिन साइड लाइक वी कैन डू दैट, बट अगेन सी फ्रॉम द एडमिन साइड like we are not showing any view over there. Okay, so what we'll do like now in this session, first upon like we'll try to target basically how to like set up like this some forget password वाला codes basically. ठीक है, अगर लाइक यूजर अगर सपोज कर लो कि पासवर्ड्स लाइक दे फॉरगेट द पासवर्ड्स, सो हाउ दे कैन लाइक द रीसेट देयर. ओके, सो विल डू बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन की फॉरगेट पासवर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा. So basically for the forgot password like we need some like the existing password, and based on that like we can set our new passwords. So we can go for like the update query. तो update करने के पहले हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा like whether the email is exist or not. अगर यूजर एग्जिस्ट है वहाँ पे देन ओनली लाइक वी कैन गो टू लाइक चेंज दी डेटा, और लाइक वी कैन चेंज लाइक द पासवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर. ठीक है, सो पर्टिकुलर यूजर का कोई भी डेटा अगर हमें चेंज करना रहेगा, सो लाइक फर्स्ट अपॉन लाइक वी हैव टू चेक फॉर लाइक व्हाट whether the particular user is exist or not. If it is exist, then only like you can go for like the data. Okay, so let's move for the like practicals only. We'll see how the practicals will going on like for the forget passwords query. And one more thing, that forget password wala like section like will add to like the everyone for all the users. So all the users they can easily access it, and they can set up basically that reset password wala query. ठीक है, सो लाइक डायरेक्टली लाइक विल विजिट टू लाइक दी अवर द यूजर पोर्टल. तो यूजर पोर्टल पे जाके हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड वन नेविगेशन फॉर द फॉरगेट पासवर्ड्स, and accordingly like the users they can come to like the portal and they can set up their own passwords over there. Okay, so this will be the like the part basically. Like now we'll see like how to implement these things now. Let's go for like the practical thing. So पहले तो हम लोग रन कर लेते प्रोजेक्ट को, एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें चेंजेस चेक करेंगे इसके अंदर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं एडमिन का लॉगिन करूँ यहाँ पे, सो देखिए लाइक ये यहाँ तक हम लोगों ने सेटअप किया था इन द लाइक लास्ट सेशन, बट लाइक ये जो प्रोफाइल वगैरह या ये ऐड यूजर्स तक ही हम लोगों ने बनाया हुआ था ये सारी चीज़ें ना. जो होम पार्ट भी है लाइक इसके ऊपर भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें सेटअप नहीं की है. और यूज़र के साइट्स पे लाइक हम लोगों ने एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट किया था.
ठीक है, ये भी काम कर रहा है इसके अंदर। सो अभी हम लोग आते हैं मेन पोर्टल पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो भी एक्सेस है अभी इसके पास सिर्फ मेन होम पेज का ही एक्सेस है और इसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी एक्सेस नहीं है। So like we'll add the one more thing in the like the same drop down list for resetting the passwords. ठीक है, so like we'll come to like the layout file और ठीक है, ये यूजर का सेक्शन है और यूजर के सेक्शन के अंदर लाइक विल ऐड वन मोर एंकर टैग फॉर रिसेट पासवर्ड। ठीक है, रिसेट पासवर्ड वाला कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एक और एक नेविगेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली कि पासवर्ड को अगर रिसेट करना रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे रिसेट पासवर्ड्स को। तो पहले तो हम लोग कंट्रोलर के पास आएंगे। और इसे हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं फंक्शंस को। ठीक है, सो लाइक विल क्रिएट वन मोर एक्शन हियर, पब्लिक रिसेट पासवर्ड। ठीक है, अभी पासवर्ड को रिसेट करने के लिए लाइक व्हाट विल डू बेसिकली लाइक वी नीड लाइक द वन पासवर्ड व्हिच वन लाइक विल एंटर फ्रॉम लाइक द यूजर साइट्स। सो फर्स्ट अपॉन लाइक विल रिटर्न वन व्यू। ठीक है, सो लाइक विल क्रिएट फर्स्ट व्यू फॉर दिस। तो व्यू का नाम जो हमें देना है यहाँ पे लाइक रिसेट पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म प्रिपेयर करेंगे एक हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, for like we'll pass on like the one field new passwords। ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले तो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ही फील्ड क्रिएट करेंगे दैट इज न्यू पासवर्ड्स। Input type password and then
We'll set one class that is form control. एक प्लेस होल्डर सेट करेंगे दैट इज एंटर न्यू पासवर्ड एंड एक बटन चाहिए हमें रिसेट करने के लिए दैट इज इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट value reset and here also we'll set up one class button hyphen let's say info will set up and the form like we need to pass like the method here the method is equals to like the post. Okay, so based on this given method only like we'll pass over the data that is passed over the data and we'll set up this new password for the particular user. So see for resetting like any password like I'm not asking for like any the existing user basically ठीक है because like we have like the already like the session जो like पहले से हम लोगों ने set किया हुआ है तो session के through like first upon like we'll find out like the users and accordingly like we'll reset the password for the particular user. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मैं इंटर नहीं कर रहा हूँ लाइक मैं सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है एंड इसे रिक्वायर्ड रख लेता हूँ. नो इश्यूज लाइक इसे अगर रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे तो भी ये मॉडल से सेट होगा बट यहाँ पे लाइक वी आर नॉट आस्किंग फॉर लाइक एनी मॉडल. सो यहाँ पे रिक्वायर्ड को सेट कर लेते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक यहाँ पे फॉर लाइक आस्किंग फॉर लाइक एनी पासवर्ड लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लाइक क्रिएट अगेन लाइक मॉडल फॉर दिस. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे विल पास वन नेम वाला एट्रीब्यूट फॉर दिस और नेम के अंदर मैं सेट कर लेता हूँ पास करके. ठीक है, ये नेम के थ्रू अभी हमें क्या करना है डेटा पास करना है फॉर्म में. सो स्ट्रिंग में जो हमारा डेटा जाएगा इसमें पास करके तो ये जो डेटा हम लोगों ने सेट किया ये डेटा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं देखिए यहाँ से हमारा डेटा आ रहा है ये दिस वन. तो ये पास करके जो है इसका स्ट्रिंग हम लोगों ने एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है and now like we have to check whether like the password is empty or not. Is pass dot is null or empty. ठीक है, अगर empty रहेगा सो यहाँ पे will return one view or will set up one tame data for this error message. Kindly enter fill out of this or like we can display the error message like the field should be not empty. ठीक है, एरर मैसेज आ जाएगा इस पे एंड इट विल रिटर्न द एम्प्टी व्यू ओनली हियर. एल्स ठीक है, अगर यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो लाइक यहाँ पे हमें क्या रिसेट एंटर करना है फिर. तो पहले तो हमें लाइक यहाँ पे यूजर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो भी सेशन को हम लोगों ने सेट किया हुआ है. तो सेशन के अंदर पहले तो हमें फाइंड आउट करने की कौन सा सेशन यहाँ पे एक्टिविटी है अभी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन के अंदर लाइक हम लोगों ने लाइक सेशन यूजर सेट किया हुआ है. ये यूजर है माई यूजर करके. तो पहले तो सेशन को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं http context डॉट
सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग एंड दिस सेशन को एक्सेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पे। स्ट्रिंग ये सेशन का यूजर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सेशन वाला। And then now like we'll pass one the link query here, that is db dot where ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। तो x डॉट यूजर नेम को हमें कंपेयर करना पड़ेगा दिस एस यूजर के साथ, तो ये कंपेयर हो पाएगा। डॉट विल फाइंड द सिंगल और डिफॉल्ट, so we'll get one data। ठीक है, आफ्टर दिस हमें क्या करना है, इसमें से लाइक आपको यूजर नेम ही चाहिए या कुछ अगर ईमेल को फाइंड आउट करने इसमें से हमें, तो ईमेल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं फिर। सो वार द एम्प्लॉय ईमेल और विल सेट यूजर ईमेल इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ईमेल। इसमें से ईमेल हमें मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशंस अगर चाहिए तो हम लोग पुट कर सकते हैं। इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल देन ओनली इट विल कम दिस, कि यहाँ पे ईमेल फाइंड आउट करो इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका ईमेल फाइंड आउट किया यूजर्स का हम लोगों ने, यूजर्स के अकॉर्डिंग। तो हमें यूजर नेम मिला था सेशन के थ्रू, लाइक तो सेशन के थ्रू ईमेल मिला, और इसके बाद हम लोग क्या करना है, जो भी पासवर्ड यूजर एंटर कर रहा है ये हमें उसके अंदर अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे कंडीशन पास होगा हमारा, db डॉट लॉग यूजर डॉट ठीक है। जो डेटा हमारा आ रहा है इसमें, तो डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे डेटा के अंदर ये पासवर्ड्स को सेट करेगी, डेटा डॉट पासवर्ड्स इज इक्वल्स टू दिस पास। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जो डेटा हमें मिला है। तो डेटा में से हम लोगों ने क्या किया, पासवर्ड्स को फाइंड आउट किया। ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसमें से जो यूजर नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेटा ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसके अंदर, ये डेटा के अंदर जो भी पर्टिकुलर यूजर का डेटा हमें मिला, इसका मैंने पासवर्ड सेट किया। एंड देन व्हाट विल डू हियर, लाइक नाउ db डॉट
log user dot update दिस डेटा। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर डेटा हमें मिल रहा है इसको हमें क्या करना है, अपडेट कर रहे हैं। एंड अपडेट करने के बाद विल डू द सेव चेंजेस। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एल्स की हमें। और जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, अभी एडमिन की जो एक्टिविटीज है हमारे पास, तो एडमिन एंड यूजर की, तो बेसिकली जो होम वाला व्यू हम लोग यहाँ से रिटर्न करके दे रहे हैं दिस वन। तो लाइक देखिए, ये जो होम वाला व्यू जो हम लोगों ने रिटर्न किया हुआ है, ये होम वाला व्यू हम लोग कहाँ से कैसे रिटर्न करें, एक बार लेआउट को हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ये होम लेआउट अदरवाइज सबके लिए सेम ही रहेगा। तो देखिए, ये जो होम पेज करके आ रही है, लाइक डायरेक्टली फ्रॉम, वी आर नॉट एक्सेसिंग फ्रॉम लाइक द ऑथ कंट्रोलर, विल टेक इट फ्रॉम लाइक द डैशबोर्ड बेसिकली। Since there is one dashboard controller, and index is what, like if you come to like the dashboard controller, ये देखिए, ये हमें चाहिए इसमें से यूजर डैशबोर्ड्स। ठीक है, तो यूजर डैशबोर्ड चाहिए, तो ये कहाँ पे सेट करना है हमें, देखिए ठीक है, एक यूजर डैशबोर्ड्स करके रहेगा जो एक्शन हमारा फायर होगा यहाँ पे, और कौन से कंट्रोलर में से, तो ये रहेगा हमारा कंट्रोलर नेम, दैट इज डैशबोर्ड्स। ठीक है, डैशबोर्ड करके कंट्रोल रहेगा जिसके अंदर लाइक ये जाके एक्सेस करेगा इसे। और सेम चीज़ हमें लेआउट में भी ऐड करनी है। इसका एक्शन है यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, सेम चीज़ हमें इसके लिए भी देना है, यहाँ पे एडमिन के लिए। और यहाँ पे रहेगा कंट्रोलर नेम, दैट इज डैशबोर्ड ओनली। तो फिर से हम लोग ये कोड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे कोड को एक बार चेक कर लेते हैं ये कोड करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीबगर लगाना पड़ेगा। इसको ये कंडीशंस के बाहर रखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे सेव चेंजेस हो जाएगा इसके बाद ये रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन में। सो फिर से हम लोग रिसेट पासवर्ड वाले कंडीशन में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड को मैं हटा देता, फिलहाल के लिए हम लोग एम्प्टी फील्ड के लिए टेस्ट करेंगे यहाँ पे इसे। ठीक है, सो यहाँ पे यूजर का डैशबोर्ड हम लोग ओपन कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड्स पे आ रही है। अब इसके बाद ये जो होम वाला पार्ट ये भी यूज़र डैशबोर्ड्स पे ओपन होगा। अभी आते हैं हम लोग रीसेट पासवर्ड्स के लिए। देखिए अभी रीसेट पासवर्ड के लिए हम लोगों ने कोई एक्शन को सेट नहीं किया, तो पहले हमें एक्शन को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर को ऐड कर लेते पहले तो, एंड एक एक्शन चाहिए हमें। तो कंट्रोलर रहेगा हमारा सेम ऑथ कंट्रोलर में जा रही है, एंड जो एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा रीसेट पासवर्ड वाला। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग एंटर करके देख लेते हैं। आई थिंक ये सेट नहीं हुआ है ये लेआउट में। ठीक है, इसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यूजर का लॉगिन चाहिए हमें इसमें। ठीक है, ये देखिए रीसेट पासवर्ड के लिए आ गया यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल सा पासवर्ड सेट करेंगे। जैसे रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग डीबगर नहीं लगाया, इसके लिए पता नहीं चल रहा है इसमें ये क्या हो रहा है वो। तो फिर से हम लोग डीबगर को सेट करेंगे। और ये देखो ये टीम डेटा को डिस्प्ले नहीं किया हम लोगों ने, जो एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। So like we'll come to this reset password wala CSS HTML file, and below this form like we can display this given field. There is a span tag. We'll pass one class that is text hyphen danger. तो फिर से टेस्ट करेंगे हम लोग यूजर को। ठीक है, सो यहाँ पे कैरेक्टर्स की वजह से एरर आ रहा है, इनपुट इज नॉट वैलिड फॉर द बेस 64 स्ट्रिंग।
So like we'll first clean the solution and then again like we'll build it. ठीक है, सो हम लोग एक बार चेक कर लेते डेटाबेस में। आई थिंक हमारा पासवर्ड कुछ रीसेट हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए अभी यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा, जो जो हम लोग पासवर्ड रीसेट करें, पासवर्ड तो रीसेट हो जा रहा है बट अगेन इसमें क्या होगा, फिर से इसे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जब ये हम लोग साइन इन करें तो साइन इन के टाइम पे डिक्रिप्शंस में जा रहा है, तो फिर से ये इसे हमें लाइक टैकल करना है ये चीज़ को। इसके लिए देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा, ये पासवर्ड्स को ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जहाँ पे रिसेट हो रहा है पासवर्ड आपका, like this here in the reset passwords only, we'll call the method here for this password, that is do the encrypt. ठीक है, सो यहाँ पे encrypt कर दिया पासवर्ड्स को मैंने, और फिर से हम लोग अभी रन कर लेते हैं, तो अभी ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, सो यूज़र का अकाउंट ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। देखिए ये जो यूज़र का अकाउंट है हमें डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें लाइक देखो ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा पासवर्ड एंटर हो चुका है, where id is equals to 6। तो फिर से हम लोग यूजर्स की लिस्ट टेस्ट करेंगे, तो लाइक देयर आर 3 यूजर्स ओनली, 1 admin and 2 users। So again we'll go for like the admin to set up a new user। ठीक है, ये हो गया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल आ रहा है यहाँ पे। और जैसे मेल भी जनरेट किया था, तो लाइक मेल भी यहाँ पे जनरेट होगा। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं फिर से यूजर्स के पास, जहाँ पे पासवर्ड रीसेट के लिए टेस्ट करना है हमें। ठीक है, ये अकाउंट ओपन हो गया इसका। तो जहाँ पे अभी हम लोग रीसेट के लिए आएंगे यहाँ पे, तो पहले बेसिकली देख लिए कि यहाँ पे हमें एक व्यू चाहिए, ये तो सबमिट करने के बाद डेटा आना चाहिए, तो हमारे पास कोई भी व्यू नहीं है। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, तो एक रिसेट पासवर्ड के लिए हम लोग व्यू बना देते हैं, जहाँ पे सिर्फ एम्प्टी व्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जब भी लाइक रिसेट पासवर्ड ये मेथड कॉल होगा ये एक्शन आपका, तो तब ये सिर्फ नॉर्मल व्यू रिटर्न होना चाहिए, जहाँ पे फॉर्म हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। And after that, like when I'll submit, then after submissions only it will come for this method, that is with the HTTP post।
तो फिर से हम लोग रिसेट पासवर्ड के लिए आएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, मिल रहा है हमें, ये देखिए ये जो लाइक टेम डेटा आ रहा है अभी डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके लिए हमें कंडीशंस को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन पास करेंगे, इफ माई टेम डेटा ऑफ एरर मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। जिस तरीके को लाइक डायरेक्टली अगर मैं रिसेट के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पे, तो मेरा लाइक ये डीबगर ऑन हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ डीबगर पुश करूँगा, देखो ये एम्प्टी में आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज एम्प्टी है हमारा पासवर्ड्स, और डायरेक्टली यहाँ पे व्यू रिटर्न होगा, और कंटिन्यू करेगी तो यहाँ पे एरर मैसेज मिलना चाहिए, फील्ड शुड बी नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो ये एरर मैसेज को हम लोग यहाँ पे सेट करके रख लेते हैं। ठीक है, सो लाइक हम लोगों ने ये जो पासवर्ड्स वाला फील्ड है यहाँ पे सेट किया है इसे। ठीक है, तो फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे कंडीशंस को। अगर फिर से रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, बिकॉज ये नल है और एम्प्टी है। इसे अगर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एरर मैसेज मिल जाएगा हमें। तो जो ब्रेक टैग पास होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पास करेंगे इसके बाद, इसे कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टली हम लोग। ठीक है, इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें एप्लीकेशंस को। जिस रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, बिकॉज एम्प्टी है। देखिए ये फील्ड आ रहा है, फील्ड शुड बी नॉट एम्प्टी। सो यहाँ पे कुछ पासवर्ड्स को सेट करना पड़ेगा हमें। लेट्स से लाइक मैं कुछ न्यू पासवर्ड्स को सेट करता हूँ, रिसेट के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, इट विल कम टू द लाइक एल्स ब्लॉक। नाउ वी हैव टू चेक लाइक विच यूजर लाइक वी आर फाइंडिंग हियर, लाइक दैट इज क्रिश। ठीक है, हमें इसका डेटा मिल रहा है देखिए, और जो भी पासवर्ड हम लोगों ने पास किया लाइक अभी ये सिर्फ कृषि करके है। अगर नल नहीं है तो हमारा जो लाइक मेन जो डेटा पास होगा यहाँ पे, तभी डेटा को चेक करे थे एक बार क्या डेटा हमें मिल रहा है। देखिए पासवर्ड फिर से एनक्रिप्ट हो चुका है ये, एंड देन आफ्टर दैट लाइक विल डू द कंटिन्यू। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हमें एक अपडेट वाला मैसेज चाहिए। तो यहाँ पे सेट करेंगे
और इसको एक एल्स कंडीशन देता हूँ मैं कि अगर इसका डेटा नल रहेगा तो जस्ट रिटर्न दी सेम व्यू ओनली, और यहाँ पे टीम डेटा को सेट करेंगे। ठीक है, अपडेट, और यहाँ पे एक मैसेज को सेट करेंगे, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, और इसे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। रिसेट करने के बाद हम लोग इसे डिस्प्ले करेंगे इन डैशबोर्ड कंट्रोलर। यूजर डैशबोर्ड्स के ऊपर then again like we'll take one class here, text hyphen success, ठीक है। एक बार रिसेट कर रहे थे एप्लीकेशंस को हम लोग। ठीक है, तो अभी जो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो भी पासवर्ड हमारा चेंज हुआ उसी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, अभी न्यू पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है। तो फिर से देखिए, अभी सपोज कर लो कि इसके लिए भी बैकअप चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ये जो पासवर्ड जो रिसेट हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डीबगर को लाइक ये कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डीबगर की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। रिसेट के ऊपर डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर शुड बी नॉट एम्प्टी, बिकॉज एम्प्टी है। तो फिर से मेरा जो ओल्ड पासवर्ड था वही मैं सेट कर लेता हूँ, और रिसेट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है देखिए पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल। ठीक है, सेम पासवर्ड फिर से जो भी पासवर्ड हमारा रिसेट हो रहा है ये हम लोग फिर से मेल कर सकते हैं ताकि यूज़र उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, जो भी डेटाबेस में अभी पासवर्ड सेव होगा तो अभी हमें पता नहीं इसका पासवर्ड क्या होगा, बिकॉज एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चला गया फिर से। ये देखिए फिर से एनक्रिप्ट हो गया ये पासवर्ड, तो अभी फिलहाल के लिए तो पता नहीं कि इसमें क्या ये पासवर्ड सेट हुआ रहेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेल में कहाँ पे तो एक एक्नॉलेज रखना पड़ेगा, एक बैकअप रखना पड़ेगा, ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर्स में अगर कहाँ पे पासवर्ड अगर लॉस्ट हो गया, सो लाइक आई कैन टेक द पासवर्ड फ्रॉम देम, और एल्स लाइक वी हैव लाइक द रिसेट पासवर्ड वाला सेटिंग इज आल्सो देयर। तो उसके से भी हम लोग फिर से रिसेट कर सकते हैं, बट बार बार रिसेट करने से अच्छा है लाइक फर्स्ट वी नीड टू चेक वेदर लाइक विच पासवर्ड इज गेटिंग क्रिएटेड ना, लाइक तो मेल के ऊपर में सेंड करोगे तो मेल के ऊपर हम लोग कौन सा सेंड करेंगे, तो जो भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में जो हमारा पासवर्ड जा रहा है वो हमें सेंड करना पड़ेगा। अगर इनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड सेंड करेंगे सो यूजर विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पासवर्ड कि हम लोगों ने पासवर्ड क्या क्रिएट किया है। इवन फ्रॉम दिस ऑल्सो लाइक यू कैन सी हम लोग ये पासवर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पासवर्ड रहेगा इसका, ये तो ये रीड ऑनली पासवर्ड्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक मेल ये करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, जो फॉरगेट पासवर्ड वाला काम तो कर रहा है ये मॉडल हमारा। अब इसके बाद हमारे पास लाइक एक सिंगल मेन टास्क ये रहेगा कि जहाँ पे पासवर्ड को हम लोग रिसेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड रिसेट करने के बाद फिर से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहे हैं, बट अगेन इसका बैकअप हमें यूजर्स को देना है। तो यूजर्स को बैकअप इसका कैसे मिलेगा, तो इवन फॉरगेट रिसेट का पासवर्ड रिसेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे ये जो सेम पासवर्ड इसने जो जनरेट किया वो फिर से वहाँ पे अपडेट होना चाहिए उसके मेल पे। तो मेल पे ऐसे जाना चाहिए कि आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है और आपका पासवर्ड अभी लाइक नाउ दिस योर पासवर्ड्स। तो लाइक नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि यूजर जब लॉग इन करेगा तो दे कैन गो थ्रू दैट पासवर्ड्स ओनली। समटाइम्स ही लाइक व्हाट दे आर डूइंग सम लाइक द मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स बेसिकली।
अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया तो लाइक वो डेटा वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएगा, और डेटा अगर रीड नहीं होगा वहाँ पे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर वो कंडीशंस आपका सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा उसके अंदर, और फिर वो आपका लॉगिन भी नहीं होगा, यूजर्स जो भी यूजर क्रेडेंशियल्स पार्ट है वो डेटा आपका मैच नहीं होगा, और सक्सेसफुली लॉगिन भी ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, लाइक जो भी पासवर्ड आपका लाइक जो भी रिसेट हो रहा है तो रिसेट वाला कंडीशन भी हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो हमारा जो मेन टास्क है वो मेन टास्क हमारा यही रहेगा कि जो भी पासवर्ड अभी रिसेट होकर आ रहा है, ये पासवर्ड हमें क्या करना है, ये मेल पे जाना चाहिए कोई पर्टिकुलर यूजर्स के, जो भी यूजर्स वहाँ पे रिसेट करे तो यूजर्स के मेल पे जाना चाहिए, तो यूजर्स क्या कर सकते हैं उसको रिसीव कर सकता है, एंड देन उसी के थ्रू वो क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। Okay, so like in the like next session, like we'll discuss about like what like the we will send this like the forgot password wala the backup to the like the mail of the receiver. Okay, and after that like what we'll do like from the admin side like we'll try to find out like the active and inactive users in the next session only. ठीक है, so ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।